So good morning, everyone. We already have done practice for VLOOKUP formula for last 2 days. Okay. So now today we are going to learn about the data validation. Data and then data validation. Okay. Last time we did this option. If you remember that with the help of data validation, we applied this number name here. Okay. So today we will learn more about the data validation. कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, हम उसके बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे आज. ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डाटा वैलिडेशन. अगर हम डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं सो मिस्टेक करने का चांसेस कम होता है एक्सेल शीट में. ओके. सो इफ वी अप्लाई डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल शीट, so there's a less chances of mistake in Excel sheet. So let me explain you something. Suppose there's a one salary chart, okay, like bonus payment sheet. एक bonus payment sheet है एक. And suppose at the time of typing all the details by mistake, suppose the salary is a 15,000, but if I write here at the place of 50,000, I put here one more zero here. So what will happen? अगर मैं यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? सैलरी इंक्रीज हो जाएगा. ओके. जहां पे पहले कितना होना चाहिए था सैलरी? 11,500. The main payment should be 11,500 if the salary is 15,000. But if by mistake, if I write here the 15, one more zero here, so it will be 1,50,000, the basic salary. So the main payment will be 1,33,000. It's totally changed the value. Okay. So you should not do this kind of mistake. So for that, we can apply here some validation rule. Validation rule. How? कैसे करते हैं देखो. Suppose there's a salary is 15,000. So I'm writing here. So the basic salary should not less than 10,000, and it should not more than 40,000. ठीक है. कि जो सैलरी है ये क्या होना चाहिए? मिनिमम 10,000 होगा एंड मैक्सिमम 40,000 होगा. अगर मैं यहाँ पे 10,000 से कम लिखूंगा, इफ आई राइट हियर लेस देन 10,000, सो वैल्यू शुड नॉट एक्सेप्ट. और अगर 10,000 से सॉरी और 40,000 से ऊपर लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा. इट शुड गिव अस एरर मैसेज. लाइक राइट नाउ दिस इज 15,000. इफ आई एम राइटिंग द 5,000, तो देखो ये ओके हो गया. बट आई वांट कि अगर मैं 5,000 लिखूंगा सो इट शुड गिव अस एरर. ठीक है. और सपोज आई एम राइटिंग एट द लाइक 1,50,000 कर दिया था ना हमने, एक मिस्टेक से ज्यादा जीरो कर दिया, तो यहाँ पे भी एरर शो करना चाहिए. ओके. इट शुड गिव अस एरर आल्सो इफ आई एम राइटिंग एट द मोर वैल्यूज. तो उसके लिए क्या करना होता है? जस्ट सेलेक्ट दिस सैलरी कॉलम. I select this salary column, then I will click on the data validation. Okay. Which option? Then data, and then data validation, and click the data validation option again. Now see settings. We have to click on the settings. Now in the setting, it's allow any value. It's mean you can write anything here. अगर यहाँ पे allow में any value है, इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. It will accept all the values. But if we change the condition from here, so only that value will accept which we want. अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कंडीशन को तो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जो हम चाहते हैं. सपोज आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी नंबर, यहाँ चेंज करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं नाउ राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, राइट, सैलरी. तो हम यहाँ पे करेंगे होल नंबर. क्या हो जाएगा? होल नंबर. अब होल नंबर में क्या होगा? इट शुड बिटवीन मिनिमम 10,000. मैंने बोला था ना कि मिनिमम 10,000 होगा, 10,000 से कम नहीं होगा. तो मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम मैंने बोला था 40,000. मैक्सिमम कर दिया 40,000 एंड क्लिक ओके. तो अब क्या होगा? अगर आप यहाँ पे 10,000 से कम लिखोगे, अगर आपने 10,000 लिखा इट विल एक्सेप्ट. बट अगर मैं 10,000 से कम लिखूंगा, सपोज 9,999 लिखूंगा, इट विल नॉट एक्सेप्ट. ओके. इफ आई एम राइटिंग हियर एनीथिंग लेस देन 10,000, इट विल नॉट एक्सेप्ट. It will give us this error message. What is the error message? Microsoft Office, Excel, the value entered is not valid. A user restricted value that can be entered into this cell. लेकिन अगर ये मैंने कंडीशन अप्लाई किया है तो मुझे पता है. If I apply this condition, so I know what is the meaning of this condition that I applied here. The salary should be less than 10, should not be less than 10,000 and should not more than 40,000. Okay.
बट सपोज करो एंड सपोज आई एम वर्किंग इन ए कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ एंड वन डे आई वाज एब्सेंट, मैं एक दिन एब्सेंट हो गया एंड एट द प्लेस ऑफ मी माय फ्रेंड वाज वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर, मेरा दोस्त मेरे कंप्यूटर पे काम करेगा और उसको अगर ये मैसेज आएगा एंड इफ ही विल गेट दिस मैसेज, सो विल ही अंडरस्टैंड, उसको ये समझ में आएगा क्या? No. Why? Yes, sir, Because it's not clarified. Okay, this message will not clarify anything. It will show only that the value entered is not valid. But then what is the valid value? We don't know. So we can customize this message also. Okay, we can customize this message also. How? फिर से बताता हूँ. Again select this data validation. Data validation again. जब हमने यहाँ पे data validation अप्लाई किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये हमने यहाँ पे लेस, ये हमने स्किप कर दिया था, एरर. विच ऑप्शन? एरर. इफ वी क्लिक ऑन दिस एरर, और यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, टाइटल में लिख देते हैं एरर. डाटा एरर. और एरर क्या है? वैल्यू, द वैल्यू इज इनपुट, सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं सैलरी should not less than 5,000 and not more यहाँ पर 10 करना था, राइट? सॉरी, कंडीशन में 10 किया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी शुड नॉट बी, salary should not be less than 10,000 and not more than 40,000 and click OK. अब यहाँ पे अगर आप कुछ मिस्टेक करोगे, suppose I am writing at the 50,000 and then press enter, it will give me this message, salary should not be less than 10,000 and not more than 40,000. So if I am absent in the office and at the place of me, if my friend is working on my computer and if he will get this message, error message, so he will understand. Am I right? अगर मैं किसी दिन ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अब्सेंट हो गया, मेरा फ्रेंड काम करेगा कंप्यूटर पे और वो कुछ गलत एंटर करेगा तो उसको ये वाला मैसेज शो करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि है क्या मिस्टेक है एरर से, राइट? यस सर. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द डाटा वैलिडेशन. दिस इज कॉल्ड द डाटा वैलिडेशन. ठीक है, ये तो नंबर के लिए. अच्छा एक बात बताओ, इफ वी डू एनी मिस्टेक देन इट विल कम, लाइक आई एम राइटिंग एज 6,000, इट गिव्स मैसेज. After input the wrong value, this message is come, it is called error. It is called the error. अगर हम कुछ मिस्टेक करेंगे देन हमको मिलेगा it is called error. But suppose if before typing anything computer will give us message, then अगर मैं कुछ टाइप करूं उससे पहले मुझे कंप्यूटर ये मैसेज करेगा कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो 10,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए, तो क्या मैं मिस्टेक करूंगा क्या? अगर हम टाइपिंग करने से पहले अगर हमें कोई बता देगा कि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा और 40,000 से कम इनपुट करना है, ठीक है, 10,000 से कम नहीं लिखना है और 40,000 से ज्यादा नहीं लिखना है, तो क्या हम मिस्टेक करेंगे इसके अंदर? बोलो. नहीं. नहीं, राइट? तो उसके लिए भी हमको सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा. इसको सेलेक्ट किया, अगेन डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं. मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे सेटिंग्स के अंदर ये चेंजेस किया, एरर अलर्ट के अंदर मैंने ये मैसेज टाइप कर दिया कि अगर हम कुछ मिस्टेक करेंगे तो ये मैसेज आएगा. ओके, आई डिड दिस चेंजेस इन सेटिंग and then apply the error also, this one, that if I do any mistake, so the computer will give us this error message. And there's a one more option is there, input message. Okay, input message. So if we write here anything, suggestion for enter salary. Okay, suggestion for enter salary value. In the suggestion for enter salary.
salary should not less than 10,000 and not more than 40,000. Okay, salary should not less than 10,000 and no more than 40,000. अब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, जब भी आप इस पे क्लिक करोगे, whenever you click here, it will give this message: suggestion for enter salary. Oh, salary should not less than 10,000 and not more than 40,000. If we read this message, so we will never do mistake. Like I'm writing here only 15,000. But if somebody after reading this message, if he or she write anything wrong here, so the computer will give us error also. Okay, so this is suggestion and error, both will come. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Okay, very good. So see, we learn about only the whole number here. Okay, whole number. Okay, there's a more option. Suppose suppose the text. Okay, I want to apply here. The text should not only some selected numbers like 10, 15, 20 like this. Okay, तो मैं यहाँ से select कर लेता हूँ उसको. ठीक है, और सपोज आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर कॉलम है, इंसर्ट किया यहाँ से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ POST पोस्ट. अब नाउ आई एम टू ऐड हियर द पोस्ट के ऑन विच पोस्ट ही इज वर्किंग, मैनेजर, क्लर्क और सेल्समैन, वो ऐड करना है. तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कॉलम को. आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस थिंग. नाउ क्लिक ऑन द डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन अगेन. ओके, यहाँ पे क्लिक किया. Then at the place of any value, I will click here the list. I will select the option list. Okay, list click किया and then write here manager, comma, clerk, comma. जितना भी आपको पोस्ट ऐड करना आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, like the 3 posts. Okay, okay किया यहाँ से हमने. Now you just need to click here and then select. आपको जो भी select करना है, suppose the manager, this person is clerk, ये भी clerk है, ये भी clerk है, salesman, 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 same manager, clerk, salesman, and then you can mention it the salesman. Okay, this is the option. Is it clear to everyone? We did practice for this option in the last class also, while we are adding this option. ठीक है, ये सब हमने किया था. Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good, very good. Okay, अब यहाँ पे कुछ और option है. Suppose I am writing here the joining date. Okay, I'm writing here the joining date. अब ज्वाइनिंग डेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया था, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग के आ गया, क्योंकि हमने कॉलम ऐड किया था. ठीक है, तो एक काम करो, आई वांट टू रिप्रूव दिस डाटा वैलिडेशन, सो जस्ट क्लिक हियर टू सेलेक्ट दिस कॉलम, क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन, अगेन डाटा वैलिडेशन, एंड देन क्लिक ऑन यस, एंड देन क्लिक द ऑप्शन क्लियर ऑल, क्लियर ऑल. तो क्या होगा, इस कॉलम के ऊपर जहां पे भी डाटा वैलिडेशन होगा सब रिमूव हो गया. ठीक है, अब सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है. wants to apply here the data validation. Okay, अब joining date में मुझे क्या करना है, that it should not more than present date. joining date आज तक होगा तो ठीक है, आज के बाद का होगा तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे जैसे आज का डेट क्या है 10th May 2021, if I am writing here the 11th May 2021, it should not accept. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे. Okay, and after selection go to data validation option again,
यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ एनी वैल्यू चेंज इट एंड क्लिक द ऑप्शन डेट। क्या करेंगे यहाँ से? डेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे लेस देन इक्वल टू। क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू कब का डेट करना है हमको? 10th मई 2021। ओके, 10th मई 2021। अब यहां से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 9th मई 2021, it will accept. If writing here 10th May 2021, it will accept. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 May 2021, it will not accept. ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ टू चेंज दिस मैसेज, हाउ टू कस्टमाइज दिस मैसेज। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the same thing you can do for the like at the place of this you can write the date of birth. Date of birth, for example, you are applying for your computer courses, right? So sometimes we say no, okay, less than 10 years old students not accepted here. तो अगर यहाँ पे आप 10 ईयर से कम का एज डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ, डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया हमने वापस, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे क्या लिखा था? लेस देन इक्वल टू। मैं यहाँ पे कर दूंगा बिटवीन। क्या कर दूंगा? बिटवीन। तो स्टार्टिंग, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे शुड नॉट लेस देन, शुड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे? आज सपोज करो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा? जो यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है सबकी एज कितनी होनी चाहिए? शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स से कम होगा तो शुड नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, अब 18 ईयर्स कब होगा? आज से स्टार्ट करोगे तो अब ये 2021 है, 2021 माइनस 18 ईयर्स, इट्स मीन 2003। ओके, जिसका एज 10th में 2003 से कम होगा उसको एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हमने, डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन गए और यहाँ पे हमने कर दिया ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, लेस देन इक्वल टू, सॉरी सॉरी, क्या करना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको? 2003। तो इससे क्या होगा कि जिसका एज 18 ईयर से अबव होगा वही एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लिखेगा यहाँ पे, सपोज करो 5th मई 2010, तो क्या होगा? ये एज कम हो गया, दिस एज इज कम, लेस देन 18 ईयर्स, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, और इट शुड नॉट मोर देन 50 ईयर्स ऑल्सो। तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम कर देते हैं बिटवीन। क्या करेंगे? बिटवीन, बिटवीन लास्ट डेट शुड बी दिस, राइट? एक मिनट, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से कर दो इसको बिटवीन, और यहाँ से चेंज करके कर दो, नीचे लिख दो 10th मई 2003। मतलब एंड डेट इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो ये डेट ऑफ बर्थ होना ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? लाइक 50 ईयर्स, 50 ईयर से ज्यादा का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 40 ईयर्स, 40 ईयर से ज्यादा किसी का एज होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 2021 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2021 माइनस 40, 1981। ओके, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10th में 1981। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे किसी का एज सपोज करो 10th फर्स्ट में 1950, तो क्या हो गया? ये 50 ईयर से ज्यादा एज हो गया, 40 ईयर से ज्यादा एज होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द एज? आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम टाइप कर देते हैं, एज
एज के लिए कैसे काउंट करोगे? इक्वल INT ब्रैकेट 2 times TODAY today minus this date bracket divided by 365 and bracket close again enter. आई थिंक इसको कुछ वैलिडेशन लगाए क्या? इसको देख लेते हैं, डाटा वैलिडेशन लगाया क्या? हाँ, डाटा वैलिडेशन है, इसको क्लियर कर दो। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। डाटा वैलिडेशन लगा हुआ था इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इक्वल INT ब्रैकेट 2 times राइट हियर द टुडे, मतलब आज का डेट हो गया, माइनस ये वाला डेट, क्लोज द ब्रैकेट, डिवाइड 365 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। और इसको यहाँ पे डेट लिख के आ रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको सेटिंग में जाके, एट द प्लेस ऑफ कस्टमर नंबर 00H, क्योंकि 9 ये सेम डेट हो गया ना, सेम ईयर। अगर यहाँ पे 2021 की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे 2010, सॉरी कुछ और कर देते हैं, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, ओके, ऐसे आ जाएगा। ये एज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एज। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। इक्वल INT start the bracket 2 times today, start the bracket, close the bracket, minus and then this date divided by 365 and close the bracket. Okay, so this is the question. अच्छा, now writing here another date of birth लिख के देखो, कुछ भी लिखो। यहाँ पे लिखा मैंने 4th Jan 1990। What is the age? 31। It's okay, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है कि कंडीशन हमारा था क्या, एक बार फिर से देखा लेते हैं। कंडीशन हमारा था क्या, 18 ईयर से अबव होना चाहिए एंड 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 40 से अबव नहीं होना चाहिए। सो इफ द एज इज बिटवीन द 18 to 40 सो इट विल एक्सेप्ट, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1st Jan 1960, it will not accept because it is more than 40 years. Is it okay? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो दिस द कंडीशन विच ऑप्शन डेट। तो आज आप लोगों को ये वाला प्रैक्टिस करना है, एक डेट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन के अंदर जो मैंने बताया था, फिर से मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को। डाटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन बताया, एक बताया डेट का ऑप्शन बताया है और एक होल नंबर, ओके, एंड लिस्ट ऑप्शन। होल नंबर, लिस्ट एंड डेट, ओनली दिस 3 ऑप्शंस। सो आप लोगों को ओनली ये वाला प्रैक्टिस करना है आज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then that's good.